Lecture 24, Need for Speed, Parallelism. Data warehouses often contain large tables. Parallel execution reduces response time for data-intensive operations on large databases typically associated with decision support systems (DSS) and data warehouses. Data-intensive operations refers to tasks or processes. Parallel execution helps to speed up the time it takes to get results from big databases. Parallel execution is sometimes called parallelism. Parallelism is when you split a big task into smaller parts and have multiple processes work on each part at the same time. This helps to make the task faster and easier to handle. 24.1 When to parallelize. लार्ज टेबल्स कांस एंड जॉइंस, जब टेबल का साइज बहुत बड़ा हो और आपने उस पर जॉइन ऑपरेशंस करने हैं, तब आप पैरेलल एग्जीक्यूशन का इस्तेमाल करते हैं. क्रिएशन ऑफ लार्ज इंडेक्सेस, जब इंडेक्सेस बहुत बड़ी तादाद में क्रिएट हो जाएं. बल्क इंसर्ट्स, अपडेट्स एंड डिलीट्स, जब आपने बल्क में चीजें डेटाबेस में डालनी है तो यहाँ पर भी आप पैरेलल एग्जीक्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने बारी बारी रिकॉर्ड्स को डालना शुरू किया तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा. जब डेटा बहुत ज्यादा है तब आपने पैरेललिज्म करनी है. जब आप डेटा को सीक्वेंशियली एक्सेस करेंगे तो जाहिर है टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन जब आप उसे पीसेस में डिवाइड करके एक्सेस करेंगे तो इस में कम टाइम लगेगा. एग्रीगेशंस एंड कॉपीइंग, आप एग्रीगेशंस में भी पैरेललिज्म को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. इसलिए कि जब आप एक सेट ऑफ राउज ऐड करते हैं और उन सेट ऑफ राउज को आपने पहले डिवाइड किया हुआ है तो जो सम का सम है वो टोटल सम के बराबर होगा. Note that divide and conquer means that we should be able to divide the problem and then solve it and then compile the results. In terms of size, parallelization can improve performance as the more processes the performance improvement is proportional to the number of processes involved. In terms of divide and conquer, parallelization can be useful in breaking down complex problems into smaller parts that can be solved concurrently. This leads to faster completion times and helps solve problems. Parallelization can also be useful in improving the overall scalability of a system. As the system grows, the number of processes can be increased to maintain the same level of performance. Parallelization is a testing tool for improving the performance, scalability, and efficiency of various operations and systems. First and the foremost being a multiprocessor environment. This could be made up of either a few really high-performance processes or a lot of slower machines. Then you need bandwidth to send data to those processes and exchange data between them. आपने सिर्फ साइज को ही नहीं देखना, आपने इन 5 फैक्टर्स को भी देखना है. 1. अमाउंट ऑफ डिटेल्ड. 2. इंडेक्स यूसेज. 3. नंबर ऑफ कंकरेंट यूजर्स. 4. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेक्निक. 5. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा मॉडल. Increase in data volume brings its own set of challenges such as managing a larger number of users, more complex data models, and advanced business questions. Scalability means making sure that a data warehouse can handle more data and become more complex as needed. It also means giving users the ability to analyze data in more detail. Scalability terminology. 1. Speed UP. 2. Scale UP. Scalability का मतलब है कि जब आपका डेटा सेट बढ़ेगा तो जो आपकी डिप्लॉयमेंट है उसको भी स्केलेबिलिटी के साथ साथ ग्रो करना चाहिए. यानी जब आपका डेटा सेट बढ़ गया या जब यूजर्स ज्यादा आ गए और क्यूरी की कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी तो जाहिर है आपको हार्डवेयर को इंक्रीज करना पड़ेगा. स्पीड अप. इसका मतलब है कि जब आपने तमाम रिसोर्सेज लाकर ऐड किए हैं सिस्टम में तो जो गिवन अमाउंट ऑफ डेटा था वो भी बढ़ता जा रहा है, तो जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस है जब आप प्रोसेसर्स को भी लेकर आ रहे हैं और डेटा को भी बढ़ा रहे हैं. ऊपर दी गई पिक्चर में डिग्री ऑफ पैरेललिज्म और ट्रांजिशन में लिनियर रिलेशनशिप होना चाहिए.
दूसरा जो कव है वो रियल एनवायरनमेंट को शो करता है यानी नॉन आइडियल एनवायरनमेंट को, और जब आप नॉन आइडियल एनवायरनमेंट को देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि इसमें जो स्पीडअप है वो लिनियर नहीं है। स्केल अप। वक़िफ़ताम। अगर आपने डेटा सीट बढ़ाया और साथ साथ रिसोर्सेज भी बढ़ा दिए तो जो काम करने का टाइम उसको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। स्पीडअप इज नॉन लिनियर। Parallelization OLTP vs DSS. DSS. Decision Support System. Parallelization of a single query. OLTP. Parallelization of multiple queries. OLTP systems में parallel execution होती है इस तरह से कि आप देखते हैं एक सेकेंड में कितनी ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस किया गया है, और वो ट्रांजैक्शंस कॉरेस्पॉन्ड करेंगी नंबर ऑफ यूजर्स को। 24.4 ब्रीफ इंट्रो टू पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स। ये प्रोसेसर लेवल पर पैरेललिज्म है जैसे कि SMP, MPP, NUMA, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग SMP, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी और मासिवली पैरेलल प्रोसेसिंग MPP, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस NUMA। उसी तरह सॉफ्टवेयर पैरेललिज्म इसमें मंदरजा झेल 3 चीजें हैं। शेयर्ड मेमोरी, शार्ड डिस्क, शेयर्ड नथिंग। ये तरीका है कि हम किन किन तरीकों से पैरेललिज्म को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। डेटा पैरेललिज्म, स्पेशल पैरेललिज्म। 24.5 NUMA। SMP, symmetric multiprocessing, is a computer architecture that provides fast performance by making multiple CPUs available to complete individual processes simultaneously. Multiprocessing। इसमें एक मसला है और वो मसला है कैश कोहेरेंस का, यानी जो डेटा शेयर कर रहे हैं उस डेटा में चेंजेस इस तरह से आ सकती हैं कि कुछ चीजें जो एक जगह पर आई हैं वो दूसरी जगह रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि ये एक SMP आर्किटेक्चर है और इसमें प्रोसेसर्स अलग अलग हैं। इसलिए हो सकता है इसमें हॉट स्पॉटिंग की प्रॉब्लम आ जाए। MPP। इसमें हर नोड के पास इंडिपेंडेंट प्रोसेसर होता है, उसके पास इंडिपेंडेंट IO होती है और उसके पास इंडिपेंडेंट मेमोरी होती है। जैसे कि आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं कि मेमोरी तमाम नोड में डिवाइड हुई है। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी मशीन्स इज आल्सो नोन एज वर्चुअल शेयर्ड मेमोरी। 24.7 शेयर्ड डिस्क RDBMS आर्किटेक्चर। इसमें डेटाबेस टेबल्स को शेयर किया जाता है और आप ये नहीं करते कि उसके पीसेस को डिवाइड कर देते हैं, बल्कि वो एक जगह पर शेयर किए जा रहे होते हैं। शेयरिंग का मतलब है कि जो प्रोसेसर्स हैं उनके पास जो मेमोरी है वो लॉजिकली एक सिंगल ब्लॉक की शक्ल में दिखाई देती है। When we talk about database instances, we mean a group of processes and threads that work together to manage a database. But this can cause problems when multiple nodes try to modify the same piece of data at the same time. To avoid conflicts, the nodes have to communicate with each other and take turns locking and unlocking the data so that only one node can work on it at a time. Advantages. A benefit of the shared disk approach is it provides a high level of fault tolerance. Disadvantages. इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि अगर डेटा मुख्तलिफ जगहों पर पड़ा हुआ है और अगर आपने डेटा एक जगह मॉडिफाई कर दिया तो इससे कोहेरेंस का मसला क्रिएट हो जाता है। आपको डेटा दूसरी जगहों पर भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर मॉडिफाई नहीं करेंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। दूसरा इस आर्किटेक्चर का मसला ये है कि जब सीरियलाइजेशन होती है लॉकिंग की वजह से तो इससे थ्रूपुट घट जाएगी। इसलिए कि जब एक प्रोसेसर ने एक मेमोरी सेट को लॉक कर दिया तो बाकी तो उस मेमोरी सेट को एक्सेस नहीं कर सकते।
इस आर्किटेक्चर का एक और नुकसान उसका इंटरकनेक्टेड स्विच है, अगर वो फास्ट नहीं है तो वो सारे सिस्टम्स की परफॉर्मेंस को गिरा देगा। 24.8 शेड नथिंग RDBMS architecture. There is no log conflict and therefore any time you have locking problem then you also have serialization issue. There is never any confusion and there is never any locking problem. If we join two tables with the same partitioning column, and the partitioning was performed using hash partitioning, then that is a local join and is very efficient. In the function shipping approach, the column and row filtering is performed locally by the owning database instance. Advantages: इस मॉडल में लॉकिंग नहीं होती, इसीलिए इस मॉडल में कोहेरेंस का मसला भी नहीं आएगा। इस आर्किटेक्चर को आप उस वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने टेबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, उसमें ज्यादा चेंज नहीं आते। Disadvantages: data availability depends on the status of the nodes. ऊपर वाले हाईलाइटेड पोर्शन का मतलब है कि अगर एक प्रोसेसर फेल होता है तो वो अपने साथ साथ वो सारी मेमोरी भी ले डूबेगा जो कि उससे एसोसिएटेड है। जो शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर है उसमें प्रोसेसर के पास अपनी मेमोरी नहीं थी बल्कि शेयर्ड मेमोरी थी।